guys, this is Aditi Kashyap. This is Ritika Agrawal and we welcome you all to our YouTube channel. Okay, so by the title of this video, you must have guessed that this video is going to be about all of you who have just appeared in the examinations of foundation and your results are awaiting. So, इस वीडियो में we are going to talk about both the cases. Like if you are quite sure कि you are going to be successful in the exams and if you are a bit unsure कि क्या होगा, then you can watch this video. And without any further ado, let's just Roll into the video. Okay, so if you're sure about your results, then we are going to tell you about the roadmap to C intermediate. First of all, आपको ऐसा old scheme और new scheme का कुछ सोचना नहीं है. You are going to directly fall under into new scheme. ऑल्सो इन न्यू स्कीम अब वहाँ 8 से 6 पेपर हो गए हैं, बट 6 भी ऐसे हैं कि अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स को दोनों को मिक्स करके एक कर दिया है. सो योर पेपर 1 विल बी एडवांस अकाउंट्स, पेपर 2 विल बी कॉर्पोरेट लॉज एंड अदर लॉज, पेपर 3 विल बी टैक्सेशन में DT एंड GST विल बी 50 मार्क्स ईच, DT इज डायरेक्ट टैक्स, एंड पेपर 4 इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, paper 5 is auditing and ethics, and paper 6 is financial management and strategy. And yeah, first 3 paper will come under your group 1 and the last 3 will come under obviously your group 2. And one more major change is कि अब जो आपके examination में question paper आएंगे, that would be in the ratio of 70 and 30 for each paper. 30% would be your MCQ and case study based scenarios and 70% would be your subjective answers with no negative marking in MCQs, which is a very nice benefit. Yeah, so now we are going to suggest about the faculties from which we have taken the classes. Just for reference. Yeah, so mainly we have taken the classes from an academy. Most of the teachers are from an academy. So for accounting, it is CA Tejas Suchak and Nitin Goel. Yeah, Nitin Goel. Then corporate laws or other laws, it will be Ankit Oberoi, Kunal Mandhania or Deepika Rathi. And for taxation, Vikram Biyani, but I think he left an academy. So now you can take it from Nishant Kumar sir. Then costing Pranav Popat and Sunil Keshwani sir. Both are amazing. Yeah. For auditing, you can take from Deepika Rathi or Ankit Oberoi. Then next is FM and SM, Monish Vora sir. हाँ. SM? For SM तो I think हमारे टाइम पे it was हमारे टाइम पे it was FM EFF अलग and EISSM अलग. तो FM we took from Monish Vora और सुनील केशवानी and EISSM we took from Kishan Kumar sir. So अभी साथ में तो I don't know about the teachers, but you can take FM from Monish Vora and SM from Kishan Kumar sir. Yeah. Now coming to the third part of the video. तो अभी at this time you can मतलब अभी तो जैसे एग्जाम्स खत्म हुए तो you can chill at right now. अभी सीरीज देखो, ज़्यादा chill मत करना. जितना नींद लेना है अभी उतना लो. अभी मतलब ऐसा है कि ज़्यादा बर्डन भी मत लो कि सी इंटर में क्या होगा, कैसे होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे. तो अभी बट एट द सेम टाइम ज़्यादा चिल भी मत करो बिकॉज सीरियसली मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी. एक बार पढ़ाई की आदत छूट गई ना, उसके बाद इट्स गोइंग टू. हाँ ठीक है, यू कैन डू थोड़ा बहुत ना, मतलब इतना ज़्यादा कोई नहीं बोल रहा कि जितना फाउंडेशन में करते थे, बट इंटर में यू हैव टू जस्ट मतलब 2x कर दो. अब जितना पहले हार्ड वर्क करते थे अब उससे ज़्यादा करो. एंड द राइट नाउ यू कैन स्टार्ट विद द सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स और कॉस्टिंग एंड इन थ्योरी यू कैन स्टार्ट विद ऑडिटिंग बिकॉज इसमें मेजर चेंजेस नहीं आए हैं. तो आप पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हो. ऐसे रिजल्ट्स का वेट मत करो, जिसमें मतलब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही अपनी क्लासेस स्टार्ट करोगे. यू कैन स्टार्ट राइट नाउ ऑल्सो, और बाद में जो होगा वो देखा जाएगा. तो इतना टेंशन मत लो, अभी रिजल्ट का तो सोचो ही मत. लाइक एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि दुनिया को आपका रिजल्ट उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपके रिजल्ट्स डेट एक्चुअली होंगे. बट यू नो योरसेल्फ कि आपने पेपर में कैसा लिखा है, क्या लिखा है. स्टॉप ओवर थिंकिंग, मत सोचो ज़्यादा. बिकॉज मेरे साथ ये हुआ था, मुझे पता था मेरे एग्जाम्स अच्छे गए, बट मैं इतना ओवर थिंक करती थी उस चीज़ पे कि मेरे को खुद को लगने लगा नहीं यार मेरे पेपर उतने अच्छे नहीं गए. बट एक्चुअली दैट्स नॉट द ट्रूथ. इन योर केस ऑल्सो इतना मत सोचो एग्जाम्स कैसे गए. स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट राइट नाउ. एक बार बैठो और बस एक बार सोच लो क्या लिखा था, कैसा लिखा था, कौन से पेपर में पास होने वाले हो, कैसा लग रहा है, और फिर इंटरमीडिएट का स्टार्ट कर दो. डोंट टेक दैट मच बर्डन अबाउट फाउंडेशन और लीव इट. जो हुआ छोड़ो अब और इंटरमीडिएट स्टार्ट. एग्जाम्स तो हो गए, यू कैन चेंज एनीथिंग राइट नाउ. सो उसके बारे में सोचने की और अपना यू जस्ट गिव योर बेस्ट. नाउ योर नेक्स्ट फोकस इज इंटरमीडिएट. Focus on that. और ऐसे मत लेना कि इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा. यार हम लोगों ने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, हमने भी इतना ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क नहीं किया था. बस कांस्टेंट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. एंड ट्रस्ट मी फॉर इन आवर केस हमारे तो टीचर्स भी ऐसे सिलेक्टेड नहीं थे. हमने तो जैसे तैसे किया है. एंड दैट इज़ द ओनली मोटिव. हम दोनों यहाँ बैठ के तुम्हें टीचर्स बता रहे हैं जस्ट दैट ओनली बिकॉज कि हमने टीचर्स में बहुत स्ट्रगल किए हैं. वी हैव चेंज्ड आवर टीचर्स इन द एट द टाइम ऑफ मैराथॉन्स. जब हमें मैराथॉन्स लगाने थे, लाइक
लास्ट के 3 महीने में तभी हमने जाके अपने टीचर स्विच किया है। तो Last 2 months when I started tax from scratch. एग्जैक्टली सेम, और ये बहुत बड़ी इशू होती है, लाइक यू तुम कैन लोग बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। आई जस्ट वांट वॉर्न यू गाइस कि अभी से टीचर्स अच्छे से सिलेक्ट कर लो। हाँ. मतलब यही टाइम है सी इंटर के टीचर सिलेक्ट करने का, बिकॉज वंस द रिजल्ट्स आर आउट उसके बाद फिर आपको टीचर सिलेक्ट करने ही है। exactly. अभी बैठो, अभी डेमो लेक्चर्स देखो, एंड इफ यू आर नॉट लाइक फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट एनी टीचर, डीएम अस, हमसे पूछो। हमने बहुत सारे मैराथन लेक्चर्स लगाए हैं। आई एम तो लाइक मैंने तो इतने सारे टीचर्स स्विच किए हैं ना कि मुझे तो सबका पता है कि कौन से टीचर्स, लाइक ऑब्वियसली इट डिपेंड्स, इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, डिपेंड करेगा, बट यू कैन आस्क अस ऑब्वियसली। So you can reach out to us anytime you want, and there is a link in description. You can DM us there and ask all your queries. ओके, सो देयर आर सम टिप्स फ्रॉम आवर साइड जो हमने अपने स्टडी स्केड्यूल में बहुत लेट इनकलकेट किया था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली रिप्लिकेशंस भी हुए। व्हाट यू कैन डू इज अभी से टू डू लिस्ट की आदत बनाओ, अपने दिन को प्लान करना स्टार्ट करो प्रॉपरली। या मतलब रात को सोने से पहले यू हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे। अभी से मतलब आई नो कि ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपके लिए, बट स्टिल एक हैबिट बनी रहनी चाहिए जो मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो। अभी से ऐसा रखो कि आप अपना डे पूरा प्लान करो कल के लिए कि क्या क्या करना है, और फिर पता है जब अचीव हो जाता है ना तो उसके बाद इतना ज़्यादा अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, सीरियसली, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार जो आपने प्लान किया था वो पूरा अचीव किया आपने उस दिन। और इंटरमीडिएट इज समथिंग विच इज़ वेरी वास्ट, फाउंडेशन इज नथिंग इंटरमीडिएट के सामने। तो अगर आपने प्रॉपरली प्लान नहीं किया ना तो नहीं हो पाएगा। मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था, मतलब ऐसा था कि मैं प्लान ही नहीं करती थी। डोंट लिसन टू हर, इसका स्टडी स्केड्यूल इज टोटली डिफरेंट, एंड ऑब्वियसली मैं बोल रही हूँ दिस वाज आवर मिस्टेक। मैंने भी नहीं प्लान किया था इनिशियली, बट आफ्टर ग्रुप 1 मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं हो पाएंगे। ग्रुप 2 के क्लासेस के साथ ग्रुप 1 की रिविजन मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो तभी मैंने जाके प्रॉपरली लिख के प्लान करना स्टार्ट किया। ऑल्सो अगर आप मतलब जैसे रात को नहीं पढ़ पाते हो या सुबह उठ के जल्दी नहीं हो पाता है तो मत करो, ये हैबिट मत डालो। बिकॉज मैं भी ऐसे नहीं है कि मैं लेट नाइट पढ़ती हूँ या फिर सुबह जल्दी ऐसे 3-4 बजे उठ के पढ़ती हूँ। मैं पूरे दिन ही पढ़ती थी, मतलब जो दिन का टाइम होता था सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 या 10 बजे तक। मुझसे नहीं हो पाता था लेट नाइट स्टडीज या सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। मेरे मतलब बिल्कुल भी नहीं, मेरे से तो हो ही नहीं पाता। जो हैबिट अभी तक रही है ना उससे चेंज मत करो, वही रहने दो। बट इट डजंट मीन अगर आप फाउंडेशन में 7-8 घंटे पढ़ते थे तो अभी भी आप 7-8 घंटे ही पढ़ोगे, नहीं होने वाला है उससे। मिनिमम, और अगर 7-8 घंटे पढ़ रहे हो तो इट मस्ट बी प्रोडक्टिव। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4-5 घंटे पढ़ लिया और बाकी 2 घंटा से मतलब दिखाने के लिए पढ़ रहे हो। Exactly. और टाइमर्स लगा के पढ़ो, दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। लाइक यू कैन ऑन टाइमर कि अभी आप पढ़ने बैठे हो और जब आप उठे हो यू कैन स्टॉप दैट टाइमर, एंड इन द एंड ऑफ द डे यू कैन सी कि कितनी देर की आपकी प्रोडक्टिव स्टडी हुई है। तो एक्चुअली इट विल गिव यू एन आइडिया। ऐसे तो हम सोचते हैं कि हम 14 घंटे पढ़े बैठे हैं बुक्स लेके। ना 14 घंटे विल नॉट वर्क फॉर यू ऑल। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि 14 घंटे पढ़ा है तो मतलब कुछ अच्छा ही पढ़ा होगा, उसमें से अगर पता चला कि 8 घंटा वेस्ट किया तो एग्जैक्टली क्या ही मतलब है। फिर 8 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 8 घंटे ऐसे पढ़ो कि अभी इट्स नॉट मतलब ज़रूरी कि आप पूरा पढ़ो क्योंकि अभी रिजल्ट वगैरह कुछ भी नहीं आया। तो यू कैन स्टडी 2 to 3 आवर्स। अभी तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत 2 to 3 आवर्स इज वे टू लेस। नहीं, 5 घंटे तो मिनिमम 5 घंटे पढ़ो अभी भी। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु वर श्योर अबाउट देयर रिजल्ट्स कि हाँ भाई मैं तो पास हो ही जाऊंगा, बट नाउ इतना श्योर कोई नहीं होता वैसे। आई नो, बट अगर मतलब थोड़ा सा अनश्योर हो कि यार नहीं हो पाएगा इस बार तो मतलब वापस से जरूरत है, बिकॉज यू नो व्हाट योर रिजल्ट विल बी। सो अभी से मतलब ऐसा इतना ज़्यादा लोड मतलब कुछ टेंशन मतलब ठीक है जो होगा अच्छा ही होगा। सो अभी ऐसा कर सकते हो कि तुम लोग सीए इंटर का प्रिपेयर कर स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर थोड़े बहुत करो, और उसके साथ ही 1-2 घंटे यू कैन लाइक, ऑब्वियसली ऐसा होता है कि चारों सब्जेक्ट से तुम्हारे फाउंडेशन में खराब नहीं गए होंगे। व्हाट यू कैन डू इज, सपोज अकाउंट्स अच्छे गए, सपोज मैथ्स की पेपर उतनी अच्छी नहीं गई, तो व्हाट यू कैन डू इज मैथ्स पढ़ना शुरू कर दो अभी से, बिकॉज मैथ्स वाज अ वीक सब्जेक्ट। स्टार्ट एनालाइजिंग कि कहाँ पे मिस्टेक्स किया आपने, कौन से सब्जेक्ट में मिस्टेक किया, तो यू कैन स्टार्ट दैट सब्जेक्ट अगेन। हाँ, स्टार्ट इन द सेंस आप ऐसा नहीं कि उस टीचर की क्लासेस आप वापस से लेना स्टार्ट कर दो। यू कैन स्टार्ट बाय योरसेल्फ, स्टार्ट रिवाइजिंग, मैराथन लेक्चर्स देख सकते हो और खुद से जितना सॉल्व करोगे, लाइक मैथ्स का सब्जेक्ट इसमें खुद से तो प्रैक्टिस करो ही कोर्स, तो आप वो सब कर सकते हो। ऑल्सो मतलब ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, अभी से जो होगा देखा जाएगा, अभी उसका मत सोचो, बिकॉज अभी रिजल्ट आप चेंज नहीं होने वाला है। तो व्हाट इट्स गोना बी। ऑल्सो आई हैव टू टेल यू वन थिंग कि अभी हमारे पास सी इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन है ऑफ अन अकेडमी, एंड इट इज़ वैलिड टिल जनवरी 2024। सो इफ़ यू वांट टू
you can take it from us, you can DM us. So it is very at cheap price. हम ऐसा नहीं है कि बहुत एग्जैक्टली अनअकैडमी के ऐप पे जो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है उससे बहुत ही कम रेट पे हम आपको देंगे. बहुत ही कम रेट पे है. So you can obviously DM us for that. And we have only one left. And genuinely we have only one left. So yeah, here we conclude this video. Chill karo, maze karo, whatever you have done the best. You have given your best. Don't worry about anything now. Spend time with your family. Of course, that is the most important thing. So abhi matlab we're gonna end this. Till then, bye bye. Take care. Bye. Take care. See you in the next one. Like, subscribe, and comment on the video. Bye bye.